Assalamualaikum everyone. Today our presentation topic is probiotic sachet and yogurt formation, and I am Dr. Hamid Majid from Department of Food Sciences to present this topic. In this presentation we will discuss objectives of this particular topic: isolation of probiotics bacterial strains and their identification and characterization, drying of these probiotics and their sachet development. Next we will have a trial on yogurt formation through this probiotic sachet, and then we will discuss its functional and organoleptic properties that are related to the product development, and then at the last we have outcomes of this presentation. In the first part we have objectives. As far as this topic is concerned, the probiotic sachet is manually, or you may say it is directly linked with health benefits. First of all, it is enhancing the gut health. Our gut needs probiotics for their better absorption. Next we have nutrient absorption. It generally enhances our nutrient absorption capacity of human gut. Then convenience to the human gut. It just helps gut to easily absorb different nutrients that are normally wasted from the gut and not absorbed by the gut, and it just boosts our immunity system. Then we have isolation and identification of these probiotics. First we grew these probiotics over MRS agar and nutrient agar. Nutrient agar is basically multi-purpose media used for all sorts of bacteria, but MRS is generally taken as probiotic bacterial growth media, as it is specific media for these probiotics. Some growth patterns are shown in images. These are all probiotic bacterial growth. Next step we have check these microscopically. All the probiotics obtained on MRS agar plates were studied under microscope. All the bacteria obtained from MRS plates were dried in air dryer under conditions as shown in the slide. These probiotics were dried to enhance their storage and to make them usable for later use. In the next step we have the development of probiotic sachet, the main part of our presentation. We have done the probiotics extraction, their identification, and then their drying. After drying we are developing a sachet for all the probiotics. These probiotics are basically starter culture for yogurt formation, and we are not using any sort of culture or any other culture for yogurt formation. If we have this sachet, we can develop yogurt, and that yogurt will be a functional yogurt. In the yogurt formation, use of this probiotic sachet is very keen to observe. We have to use different techniques to properly mix this sachet. If we are not mixing properly, we will not have the desired properties as we want from our product. So first of all, in this procedure we will have to mix the sachet properly in the milk. While mixing the sachet, our milk should be on 5. In mixing these sachet, we have to boil the milk and let it cool down. When it seems it is neem garam, जब ये हो जाएगा दूध, then we will have to add the probiotic sachet in this milk and allow it to incubate for 24 hours at 37 degree centigrade. नॉर्मली जब घर में ये दही अगर बनाई जाए
तो उसके लिए इसकी टेम्परेचर मेंटेनेंस नहीं हो सकती, तो इसको ऐसी जगह पे रखा जाए जहाँ पे कूलिंग ना हो और मॉइस्चर कम से कम हो, जिसकी वजह से इसको प्रॉपर हीट मिल सके और प्रॉपर रिएक्शन हो सके और प्रोबायोटिक अपना फंक्शन बेटर परफॉर्म कर सके। If we have the proper mixing of probiotic sachet in the milk, then will have a strong textured yogurt with tangy flavor. और इस योगर्ट को डिलाइटफुल क्या चीज़ बनाती है, अगर इसकी प्रॉपर मिक्सिंग की जाएगी प्रोबायोटिक साशे की, तो ये एक हार्ड टेक्सचर जेली लाइक टेक्सचर होगा इसका, जिसे स्मूथ टेक्सचर हम कहेंगे, और इट विल बी हैविंग अ ग्रेट माउथ फील. Its texture will be so good and it will appeal you to eat more and more. So some conditions are mandatory to have a proper yogurt and proper flavored yogurt that will enhance your mouth feel. Storage conditions, बेसिकली जब योगर्ट प्रिपेयर की जाती है उसके बाद उसको स्टोर किया जाता है कोल्ड इन्वायरमेंट में. अगर उसको स्टोर ना किया जाए, इट्स एसिडिटी एंड अदर प्रॉपर्टीज़ जनरली इंक्रीजेज एंड इट इज़ अनफिट फॉर यूज़ एंड बेसिकली नॉट अनफिट, वी कैन से दैट कि ये खाने में जो है ना खटास बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि लैक्टिक एसिड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है अगर इसको हम ओपन इन्वायरमेंट में रखते हैं, क्योंकि बैक्टीरियल एक्टिविटी कंटिन्यू रहती है. उस बैक्टीरियल की एक्टिविटी को थोड़ा डिले करने के लिए हम इसको कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं अंडर 4 डिग्री सेंटीग्रेड. देन वी हैव ऑप्टिमल मिल्क टेम्परेचर एंड फर्मेंटेशन टाइम. हम लोग कितना जो ना मिल्क को टेम्परेचर देंगे तब वो हमारी जो ना डेवलपमेंट ठीक होगी. एंड व्हाट इज़ द फर्मेंटेशन टाइम? सो आइडियल टेम्परेचर फॉर मिल्क इज़ 35 to 41 डिग्री सेंटीग्रेड. इस रेंज के अंदर अगर हमारा मिल्क होगा और हम इसमें कल्चर को ऐड करते हैं तो हमारा जो योगर्ट है वो प्रॉपर बनेगा और उसमें हमें जो ना स्नैक्स कम से कम मिलेंगे अगर प्रॉपर मिक्सिंग होगी इस टेम्परेचर के ऊपर. सेकंड इज़ फर्मेंटेशन ड्यूरेशन. हम कितने टाइम के लिए इसको फर्मेंटेशन या कल्चर को ऐड करने के बाद कितना टाइम देंगे कि वो योगर्ट फॉर्मेशन हो जाए. तो उसके लिए हम नॉर्मली 6 to 8 आवर्स देते हैं, और जिस तरह अगर हम घर में बनाएं तो उसके लिए थोड़ा सा एक्सटेंडेड टाइम होता है, वो हम 12 आवर तक ले जाते हैं. देन इज़ मेंटेनिंग द टेम्परेचर. This is the most critical point in this formation. Maintenance of temperature is directly linked with texture development, product properties, organoleptic properties, and other textural properties. All these properties are linked with this maintenance of temperature. If we do not maintain the temperature, we will not get the desired properties. Probiotic stability and functionality. बेसिकली जो हमारे पास ये प्रोबायोटिक्स आए हैं इनकी हम स्टेबिलिटी और फंक्शनैलिटी को भी टेस्ट करेंगे कि वो किस पॉइंट पे क्या कितने रेजिस्ट कर सकती है चीज़ों को या अपनी इन्वायरमेंट को. उसमें बेसिक पहली चीज़ है स्टेबिलिटी इन योगर्ट के प्रोबायोटिक के अंदर प्रोबायोटिक्स जो है योगर्ट के अंदर कितने स्टेबल रहते हैं, कितने ड्यूरेशन के लिए स्टेबल रहते हैं और कितनी देर तक वो एक्टिव रहते हैं. सेकेंड इज़ एसिड टॉलरेंस. बेसिकली योगर्ट इज़ एन एसिडिक फूड. जब एसिडिटी डेवलप होती है प्रोबायोटिक्स में जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है योगर्ट के अंदर वो बेसिकली एसिड है, और एसिड की प्रोडक्शन की वजह से जो प्रोबायोटिक्स हैं वो डाई होना शुरू हो जाती हैं. तो हमने वो पॉइंट चेक करना है कि कहाँ तक एसिड को टॉलरेट कर सकते हैं हमारे प्रोबायोटिक्स. एंड द लास्ट वन इज़ मेटाबॉलिक एक्टिविटी. प्रोबायोटिक्स आर परफॉर्मिंग देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी. Their metabolic activity is developing and it is directly linked with the texture of yogurt. If they are having a high metabolic activity, they will increase the synapses, they will increase lactic acid production, they will increase the watery texture of yogurt, and this will be not our desired product.
if this happens. So metabolic activity is very crucial to observe, and we have to maintain all these conditions to avoid such a happening of our product. Next we have probiotic viability in yogurt and changes in milk by probiotics. Probiotic viability in yogurt, we will observe their viability and their activeness, what function they are performing, and up to what point they are viable in yogurt. their स्टोरेज पीरियड, बेसिकली योगर्ट को जब स्टोर किया गया उसके बाद हम उसको टेस्ट करेंगे कि उसमें जो प्रोबायोटिक्स हैं वो किस पॉइंट तक वेल वाइबल हैं या एक्टिव हैं उसके अंदर, और हम उसको अगर कंज्यूम करेंगे तो वो हमारे हेल्थ बेनिफिट्स हमें प्रोवाइड करेगी. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मिल्क, बेसिकली प्रोबायोटिक्स आर डायरेक्टली लिंक्ड इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मिल्क इनटू योगर्ट. Their probiotic activity in milk will result in acid production, and this acid production will lead to yogurt formation. न्यूट्रिशनल चेंजेस, ज़ाहिर है उसमें न्यूट्रिशनल चेंजेस भी आते हैं जब योगर्ट की फॉर्मेशन होती है. तो वो मिल्क के जो प्रोटीन्स होते हैं वो नॉर्मली लॉन्ग प्रोटीन्स होते हैं, उनकी लॉन्ग चेन्स होती हैं. पेप्टाइड्स वो ब्रेक डाउन होके स्मॉलर पेप्टाइड्स में कन्वर्ट होते हैं, और उसके अलावा विटामिन्स, मिनरल्स और बेनिफिशियल मेटाबोलाइट्स इसमें क्रिएट होते हैं ड्यू टू प्रोबायोटिक एक्टिविटी. प्रोबायोटिक्स आर डायरेक्टली लिंक्ड विद टेक्सचर इम्प्रूवमेंट एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर. प्रोबायोटिक एक्टिविटी की वजह से हमारा जो टेक्सचर है वो इन्हेंस होता है, और ये टेक्सचर को इन्हेंस करने में हेल्प आउट करता है. Then we will discuss their physical attributes, that is quality control and testing. In this we have physicochemical analysis. Their physical properties are being studied. उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी उनको स्टडी किया जाएगा, जैसे मॉइस्चर कंटेंट है, टाइट्रेटेबल एसिडिटी एनालिसिस है, और बाकी चीज़ें लिखी हुई हैं. इसके अलावा माइक्रोबियल एनालिसिस की जाती है कि वो जितने भी हमारे बैक्टीरिया हमने ऐड किया है एज अ प्रोबायोटिक, तो वो वाइबल कहाँ तक हैं, उनके अंदर वो प्रेजेंट भी हैं कि नहीं, उनकी जो आइडेंटिफिकेशन की जाती है, फिर उनकी स्टोरेज चेक की जाती है. देन इज सेंसरी एनालिसिस. सेंसरी वैल्यूएशन बेसिकली इट इज़ डन थ्रू पब्लिकली हम इसको जो है डील करते हैं. जो हमारे रिनाउंड जो लोग होते हैं वो स्पेसिफिक किसी काम के लिए होते हैं, वो सेंसरी एवेल्यूएशन करके हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं आया कि वो जो हम डिज़ायर प्रॉपर्टीज़ बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है. तो वो सेंसरी एवेल्यूएशन हम लास्ट में करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट वैसा बना है कि नहीं बना, और वो हम डिफरेंट लोगों से जो है उसका कंसर्न लेके उनको टेस्ट करवा के हम चेक करते हैं. इसके अलावा सेंसरी एवेल्यूएशन हम अब डिवाइसेस भी आ गई हैं, रोबोटिक्स हैं, इसमें AI भी हेल्प आउट कर रहा है, तो उसके थ्रू भी हम सेंसरी एवेल्यूएशन कर सकते हैं. न्यूट्रिएंट कंटेंट भी हम जो है चेक करते हैं लेबॉर्ट्री एनालिसिस में. लेबॉर्ट्री में जो है प्रोटीन एनालिसिस करते हैं, लिपिड्स और जितने भी इसके अंदर अमाइनो एसिड्स वगैरह और डिफरेंट चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, उन सबको हम चेक करते हैं. शेल्फ लाइफ टेस्टिंग, हमारा मेन कंसर्न यही है कि हमारा प्रोडक्ट कब तक जो है स्टेबल है. अगर हम उसको जो है डिज़ायर टेम्परेचर देते हैं तो उस पर वो कितने अरसे तक फ्रेश कंडीशन में रहेगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ अल्टर नहीं होंगी, और वो अपनी ओरिजिनल शेप में, ओरिजिनल फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा. शेल्फ लाइफ एंड स्टोरेज कंडीशन इन्हीं के बारे में बताया हुआ है. जैसे अभी पीछे बताया कि शेल्फ लाइफ बेसिकली उस प्रोडक्ट की फ्रेशनेस के लिए हम जो है चेक करते हैं कि उसकी जो फ्रेशनेस है वो जहाँ तक हम चाहते हैं वो फ्रेशनेस रहे, तो उसके लिए हम वो टेम्परेचर की मेंटेनेंस हमने करनी है, और उसकी जो कंडीशंस हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं, उनको हमने मेंटेन करना है. और सेम इज़ द केस विद स्टोरेज कंडीशंस. शेल्फ लाइफ एंड स्टोरेज कंडीशन आर इंटरलिंक्ड. Last we have outcomes of this presentation. Indulge in creamy goodness, nourish your gut, customize your flavors and share the goodness. As हमने जो ऑब्जेक्टिव्स बताए थे वही ऑब्जेक्टिव्स हमारे फुलफिल हैं कि नहीं है, दैट आर आवर आउटकम्स. तो बेसिकली जो हमने ऑब्जेक्टिव्स अपने बताए थे वो हमारे फुलफिल हो रहे हैं. हमारे जो आउटकम्स हैं उसमें हमारा जो प्रोडक्ट है जो हम इस साशी से डेवलप कर रहे हैं वो क्रीमी टेक्सचर दे रहा है, जो हमें डिज़ायर टेक्सचर चाहिए अपनी योगर्ट में से,
वही जो ना एट्रीब्यूट्स उसमें प्रेजेंट है। सेकेंडली उसमें जो वो हमारी गट है या हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स है उसमें भी हेल्प आउट कर रहा है, और उसमें हमारी बॉडी को हेल्प करता है कि हमारे इम्यूनिटी बूस्ट हो सके, और हमारी जो गट की एब्जॉर्प्शन है उसको वो इन्हेंस करता है, इंक्रीज़ करता है। थर्ड इज़ फ्लेवर्स डेवलपमेंट। जब प्रोबायोटिक अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो जो मिल्क है उसके जो प्रोटीन्स हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, उनको इन्हेंस फॉर्म में जो है ना प्रेजेंट कर देता है, जो कि योगर्ट का पार्ट बन जाते हैं। और वो जो है वो फ्लेवर की डेवलपमेंट हमारी बेसिकली टेक्सचर डेवलपमेंट करती है, और टेक्सचर और फ्लेवर जो ये चीज़ें हैं वो उसकी वजह से हमारी इन्हेंस हो रही हैं। And the last our product is sharing goodness. So that's all from this presentation. Thank you.